یہ اقامت ہمیں پیغام صبر دیتی ہے اور زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. اور جو بھی یہاں آیا ہے سب کو یہاں سے جانا ہے. موت ایک حقیقت ہے اور زندگی فسانہ ہے. آج تک یہ معمہ نہ سمجھا کوئی اور نہ شاید یہ کوئی سمجھ پائے گا. زندگی آئی ہے موت کے واسطے یا کہ موت آئی ہے زندگی کے لیے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام موت ہے. سب سے بڑی سچائی اس لیے بول رہا ہوں کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. جاپان میں 80% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی موت کو مانتے ہیں. یہ موت کی سچائی ہے. اور ٹھیک اتنی بڑی یہ بھی سچائی ہے کہ انسان جتنی غفلت اپنی موت سے کرتا ہے انسان کسی دوسری چیز سے اتنا غافل نہیں ہے جتنا اپنی موت سے غافل ہے. غفلت کا عالم یہ ہے کہ آگے یہ جنازہ ہے پیچھے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. غفلت کا عالم یہ ہے کہ قبرستان میں طرف میت کو ہم دفن کرتے ہیں اسی قبرستان میں دیکھیں گے تو ادھر ادھر لوگ کھڑے ہو کے گیہوں اور دھان اور سیاست کی باتیں کریں. جبکہ قبرستان میں پہنچنے کے بعد اپنا انجام یاد آنا چاہیے. اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا سورج کہاں ڈوبے گا, ہماری زندگی کی شام کہاں ہوگی اور اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا. کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا, جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی, کانٹھا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں کر سکتے. ابھی کورونا مہاماری میں کیا تھا, موت کا ڈر, دہشت. وہ لوگ جو جمعہ کے دن بھی مسجد میں نظر نہیں آتے تھے نماز کے لیے مسجد میں جھگڑا کر رہے تھے جبکہ 3 ہی آدمی کو پڑھنا تھا کورونا نماز. اور جیسے کورونا نارمل ہوا وہ سب جمعہ کے دن بھی دکھائی نہیں دے رہے. تو ڈر کس کا تھا؟ کورونا کا. موت کا ڈر نہیں تھا, دہشت تھی پوری دنیا میں. اسحاق صاحب خوش نصیب ہے کہ موت ہو گئی, بیٹوں کا کاندھا ملا. گھر والے گاؤں والے رشتہ دار احباب ان کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کی. کفن دفن ہوا, اصالے ثواب کی محفل سجی ہے, حضور مفتی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے. لیکن حالت کیا تھی کورونا مہاماری میں؟ بیٹا مر گیا لیکن باپ اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. باپ کی موت ہو گئی, بیٹا اپنے باپ کو کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں, چہرہ کھول کر دیکھا نہیں گیا. لاش کسی اور کی تھی, گھر کسی اور کے پہنچ گئی. یہ ڈر تھا. موت کا ڈر یہ تھا کہ بہت سی لاشوں کو کفن تک نہ ملا, بہت سی لاشوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی, بہت سے لوگ گھروں تک نہیں پہنچ سکے موت کے بعد. غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے, اداس چڑیا چمن کے لیے ترستی ہے. کسی کی کار میں کتے پہ ریشمی چادر, کسی کی لاش کفن کے لیے ترستی ہے. بہت سی لاشوں کو کفن نہیں مل پاتا. ہمارا آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے, بے خبر ہے. ہماری زندگی کا سورج کہاں ڈوبے گا معلوم نہیں ہے, ہماری زندگی کی شام کہاں ہو جائے گی کوئی خبر نہیں ہے. اس لیے اسحاق صاحب خوش نصیب ہے کہ ان کے بچے ان کی یادوں کی محفل سجائے ہیں. ہمارے بعد ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ڈر اس دل میں رب کا پیدا کیجیے. انسان کورونا سے ڈر کے کچھ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن کورونا سے مرنے کا صرف 1% چانس ملتا ہے. لیکن جو رب کی جانب سے موت آنے والی ہے وہ 100% موت آتی رہے گی, اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور وہ جب بچانا چاہتا ہے نا تو دنیا کا کوئی وائرس کسی کو نہیں مار سکتا, اور وہ جسے مار دے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. جب رب بچانا چاہتا ہے تو اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرماتا ہے. جب رب بچانا چاہتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتا ہے. جب اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے تو بنا کشتی بنا پل کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو دریا سے پار کرا دیتا ہے. جب وہ بچانا چاہتا ہے تو 40 دنوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالتا ہے. جب وہ بچانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو تو چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل ذبح اللہ کو زندہ بچاتا ہے. جب وہ بچانا چاہتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود سے زندہ صحیح و سلامتی کے ساتھ باہر نکالتا ہے. جب وہ بچانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کے غار میں مکڑی کا جالا بن دیتا ہے اور کبوتری کو انڈا دینے کا حکم دے دیتا ہے. دشمن دہانے سے واپس آ جاتے ہیں. تو جسے رب بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی ہے, اور جسے وہ مار دے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکتا. جب وہ مارنا چاہتا ہے تو
तो मच्छरों की फौज भेज के नमरूद जैसे सुपर पावर इंसान को तबाह कर देता है। जब वो बचाना चाहता है तो अबाबीलों का लश्कर भेजकर अबरहा जैसे सुपर पावर हाथी वाली फौज को जिसको नाबूद फरमा देता है। बचाना चाहता है तो मछली के पेट से जिंदा निकालता है, और मार देना चाहे तो चिड़ियों को भेजकर बड़ी फौज को तबाह कर देता है। तो डर किसका हो? इस दिल में रब का, जो एक लम्हा के लिए हमसे गाफिल नहीं है। हमें मुहासबा करना होगा। आज 10 फरवरी का दिन गुजर गया। इस गुजरे हुए दिन में हमने रब के अता करदा पानी को पिया है, उसके दिए हुए खाना को खाया है, उसकी बनाई हुई हवा से सांस लेकर हम जिंदा हैं। लेकिन जिस रब ने हमें पानी दिया, जिस रब ने हमें दिन में खाना दिया, जिसने हवा भेज के जिंदगी बचाई, सोचना होगा कि आज हमने एक बार भी अपने रब का नाम लिया है, उसकी बारगाह में हमारा सर झुका है, हमने उसका जिक्र किया। अगर कुछ भी नहीं किया तो कोई राइट नहीं है कि आज के इस दिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्वूर करें। उठने के बाद पहला काम क्या था? आज रात में फिर सोना है। सोने के बाद हमारे जिस्म का हर पार्ट लॉक हो जाता है। ना आंख देख सकती है, ना जबान बोलती है, ना कान सुनता है, ना पांव चलता है, ना हाथ पकड़ता है, सारा पार्ट लॉक हो जाता है। कभी कभी इंसान सपना देखता है ख्वाब, वो भी क्या देखता है? वह हम पिचास दौड़ा रहा है, कभी कुत्ता दौड़ाया, कभी बंदर दौड़ा रहा है, कभी सांप चहेटेगा है, छोटा लड़का सब देखता है काछी में पेशाब कर रहा है, पूरा बिस्तर को भिगो के रख देता है ना। तो उस पर अपना अख्तियार नहीं है। जैसी सोच वैसा काम। हमारे ख्वाब में न मक्का नजर आता है, न मदीना नजर आता है, न मुसल्ला, न कुरान। जैसी सोच वैसा ख्वाब। सारा सिस्टम लॉक हो जाता है जिस्म का सोने के बाद। एक चीज चलती रहती है जिसे हम सांस करते हैं। कौन चलाता है? कौन चलाता है? माँ चलाती है, बाप भाई बहन कोई नहीं। वही रब है जो सांसों को चला चला कर सुबह में रोज एक नई जिंदगी अता फरमाता है। तो सुबह उठ जाने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए था? कोई गारंटी लेकर सोता नहीं है कि हम सुबह को उठेंगे। अगर उठ गए और अल्लाह की बनाई दुनिया देख रहे हैं, सूरज पे नजर पड़ रही है, चांद सितारों को देख रहे हैं, तो पहला काम ये था कि कहते अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नशूर। तमाम तारीफ उस रब के लिए जिसने आज फिर हमें एक नई जिंदगी अता फरमाई और एक दिन उसी की तरफ बढ़ाया। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो लाइफ स्टाइल में तब्दीली पैदा कीजिए। कल आने वाला दिन आपका ऐसा न गुजरे, उसकी फिक्र करनी होगी। आखिरत का खौफ दिल में। हजरत रूबी बिन हिरास का इंतकाल हुआ। उनके भाई ने बसाल को बुला के कहा कि मेरे भाई को नहला दो। नहलाने वाला गया, नहला के वापस आ कर हम नहीं नहलाएंगे। कहा क्यों? कहा कि पहली बार देख रहा हूँ कि मैं उन पे पानी डाल रहा हूँ और वो मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत बड़े ताबई है। रूबी ने कहा कि तेरा वहां होगा, मेरा भाई मर चुका है। कहा कि मरे हुए की बात कर रहा हूँ, जब मैं पानी डाल रहा हूँ मुस्कुरा रहे हैं। कहा फिर से डाला, फिर गया। कहा भाई हंस रहे हैं। तभी रोने लगे। कहा कि उसे नहला दे, वो हंसता है तो हंसने दे। कहा आप क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं खुशी में रो रहा हूँ कि मेरा भाई मरने के बाद हंस रहा, इसलिए कि मैंने पूरी जिंदगी रूबी को कभी हंसते हुए नहीं देखा। उसके दिल में खुदा का खौफ इतना था, वो अज़ाब कब्र से इतना डरा हुआ था, वो रब की बारगाह में खड़ा होने से इतना सहमा हुआ था कि मैंने जिंदगी में रूबी को कभी हंसते हुए नहीं देखा। और आज अगर मौत के बाद वो हंस रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अंजाम बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद कहा तुम नहला दो। कफन में जब कफना दिया गया तो लोगों में इख्तिलाफ हो गया कि भाई रूबी के बारे में बसाल कर रहा था कि वो हंस रहे थे, ऐसा हो सकता है? कुछ लोग कह रहे थे हो सकता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं हो सकता है। जब तक एक कफन से आवाज आई अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल हाज़िरून, रूबी बिन हिरास कफन से सलाम किए हाज़रीन को, तो किसी ने सवाल किया तकल्लम बादल मौत, रूबी मरने के बाद बातें कर रहा है तू? कहा नाम, हाँ मैं मरने के बाद बात कर रहा हूँ। किसी ने पूछा तेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया? तो फिर आवाज आती है अल्लाह ने रहमतों के हाथ से मेरा इस्तकबाल किया है। और तुम लोग जल्दी करो, मुझे कब्र के हवाले करो, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह इकबाल ने कहा था निशाने मर्द मोमिन बात हुए जो मर्द आयत तबस्सुम बदले वो। एक मोमिन की पहचान ये है कि जब वो मर जाए तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट की जाती है। इसी मंजर को देखकर शायर मशीद ने कहा था कि निशाने मर्द मोमिन बात हुए जो मर्द आयत तबस्सुम बदले उस। एक मुसलमान की पहचान ये है कि जब वो इंतकाल कर जाए तो चेहरा देख लो
मुस्कुरा रहा है तो ईमान का तोहफा देने दुनिया से जा रहा है। और इसी लोगों के लिए किसी ने कहा है, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमेली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आंखें। जो नामे मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आंखें। पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। इसलिए हमें भी एक बार फिक्र करनी होगी अपनी आखिरत के बारे में। हर दिन एक बार सोचना होगा कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा। जिस रब ने आज का दिन दिया था हमने उसका नाम लिया कि नहीं लिया, तो अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करें। नबी हसन साहब या उनके भाई अपने वालिद ग्रामी इसहाक साहब को ये साले साहब की महफिल सजाएं तो खुशबख्ती है उनकी, बला नसीबी है कि ऐसे बेटों को छोड़ के गए। और अपना हालात ऐसे हैं दोस्तों के करके लेके जो दरिया में डाल देता है, जमाना उसको भी कीचड़ उछाल देता है। अमीर बाप का बेटा जवान होते ही ज़ईफ बाप को घर से निकाल देता है। एक हफ्ता पहले की मैंने वीडियो देखी है, वायरल वीडियो। 85 साल का बूढ़ा बाप रोड के किनारे इस ठंडी में कांप रहा था। एक मीडिया वाला के पूछ रहा है कि बाबा उम्र इतनी हो गई, ठंडी बहुत है, आप रोड के किनारे क्या कर रहे हो, आपको घर में रहना चाहिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा बाबू मेरे बेटे ने घर से मुझे निकाल दिया है। कहा क्यों? कहा उसकी बीवी कहती है कि इस बूढ़े को घर में रखोगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसलिए मेरा बेटा मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। और जो बूढ़ा आदमी था उसका नाम क्या था? हाफिज मोहम्मद महफूज आगा। मेरी आंख छलक गई। इस 85 साल की उम्र में बेटे ने अपने बाप को इस ठंडी रात में घर से निकाल दिया है। 2017 में भी एक बार मैं रोया था जब मैं देखा कि एक बाप को उसका अपना बेटा पेट्रोल छिड़ककर सीमान में 20 सड़क पे चौराहा पे जला रहा था। मैं अजीब कैफियत में मुब्तला हुआ कि या अल्लाह ये क्या हो गया। जिस दिन ये पैदा हुआ होगा इसका बाप मिठाई तकसीम किया होगा कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। आज जलते वक्त इस बात को दिल पे क्या गुजर रहा था। 2018 में मैंने एक वीडियो देखी, पटना जंक्शन पर एक औरत से, बूढ़ी औरत से प्रेस वाला पूछ रहा है कि बूढ़ी माँ तुम एक हफ्ता से यहाँ बैठी हो, कहीं आ नहीं रही हो, कहीं जा नहीं रही हो, ये पब्लिक प्लेस नहीं है, तुम्हें चला जाना चाहिए, तुम क्यों यहाँ पड़ी रहती हो? बोलती बेटा मैं कहीं जाने के लिए नहीं आई, यहाँ आई हूँ इसलिए कि कोई मुसाफिर मुझसे रहम खाता है, 2 रुपया देता है, 1 रुपया दे देता है, कोई रोटी दे देता है, कोई बिस्कुट दे देता है, तो खा के जिंदगी टाल रही हूँ मैं, अपनी परवरिश कर रही हूँ। कहा तेरा कोई नहीं है क्या? कहा बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, 3 बेटे हैं, 2 इंजीनियर हैं, 1 डॉक्टर है।
میں نے اپنا زیور بیچ کے پڑھا دیا.